आज अपन ब्रेक इवन एनालिसिस इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे और यह चैप्टर जैसे बीकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए इन सभी प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एकेडमिक बेस पे बोल रहा हूँ मैं। और बिजनेस में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये एक टेक्निक है। मतलब ऐसा हुआ कि फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ब्रेक इवन पॉइंट means doing the job as an advisor, means the management accountant can take a decision with the help of break even analysis. So there is a need to know what is the break even point. This is very important to start this means chapter BEP, break even point. And you are known person, acquainted person. Each and every businessman or company wants to maximize the profit. But from what point businessman or businesses get profit, they all are unknown. They get the profit, I am sure about that, because when we are saying just like the business earned the profit, that is the difference of expenses and income. Means whatever total expenses incur and during that particular financial year what the business earn, means that is your income. ठीक है? And subtract all the expenses in relation to that business activity. So when you subtract the expenses, you can say that is a profit. Very easy task to find out the profit. Subtract all the expenses from on income, that is profit. But my question is here, from what point the profit started or profit received to that businessman or suppose company? That is very important. So how you will get that point? That point is known as break-even point. On that break-even point, the revenue and the expenses, both are same. Means you can easily understand. Suppose I say revenue. Revenue means your income. Revenue means your income is equals to expenses. ठीक है? रेवेन्यू और सपोज इनकम रेवेन्यू both are expense. For better understanding, suppose our income is 10,000 and our total expense that is also 10,000. So this point indicated there is no profit and no loss. So you get information at what point you can say, oh, this is BP, break even point, where the profit begins. From that point profit begins. शुरुआत हो जाएगा. ये बात ध्यान में रखना. मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम ये दोनों सेम है. इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट. अब सवाल यह है वहां पे कि जो इस्तेमाल किया मैंने एक्सपेंसेस वर्ड, ठीक है, इस एक्सपेंस को मैं कॉस्ट बोलता हूं. अभी जैसा इसको अपग्रेड कर देता हूं कॉस्ट. कॉस्ट मींस सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी कॉल्ड एज कॉस्ट. एंड दिस कॉस्ट it is a sum of variable expenses. Variable expenses, semi-fixed expenses, and fixed expenses. ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स एक्सपेंसेस.
variable expenses means tends to vary with production. Means if production means quantity of production increases, automatically variable expenses also increases. Think about our business purchase material which is a variable expense. Means that for a product there is a need of 10 किलोग्राम, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 किलोग्राम मटेरियल लगता है, तो दो प्रोडक्ट बनाने के लिए नेचुरल बात है 20 किलोग्राम। इस वजह से मैंने ये बोला भाई मटेरियल इट इज अ वेरिएबल एक्सपेंस है, we have to convert that material into finished goods, that is also important. Means there is a need to appoint workers, means you have to pay wages to them. Worker may be skilled, semi-skilled, unskilled, etc. So wages it is also variable expenses, and some of supporting expenses incur because think about that, can it be possible by purchasing the material, by appointing the workers and you paid wages, and both the combination means material and wages, can you get, or suppose can it be possible to convert the raw material into finished goods with the help of workers? The answer is no, because there is a need of some supporting expenses just like fuel, motive power, electricity, and without this it is not possible. So you get the meaning by my explanation. Means variable expense means tends to vary with production. Then fixed. These fixed expenses not depend upon the quantity of production. Think about that. Suppose I have taken a factory on rent. So rent it is fixed. Rent it is fixed. Means the production starting under that roof. If production increase or production decrease, प्रोडक्शन बढ़ा क्या कम हो गया क्या, मुझे लैंडलॉर्ड को फिक्स रेंट देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि रेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो देना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं उसको कि भाई प्रोडक्शन कम हुआ इस वजह से रेंट कम करो, या प्रोडक्शन बढ़ गया तो लैंडलॉर्ड भी नहीं मुझे एकदम से बोल सकता है कि रेंट बढ़ाओ, ये हो ही नहीं सकता है, यह फिक्स ही रहेगा रेंट, ठीक है। इसका मतलब साफ हो गया कि फिक्स एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएबल एक्सपेंसेस, बट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस डिपेंड अपॉन वेरिएबल एक्सपेंसेस। यह मैं बोलना चाहता हूं, क्यों? देखिए रेंट तो 1 लाख रुपए मुझे पे करना ही है, इसको यूज करना है मुझे। अब यूज करना इसका मतलब कैसे हुआ कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेंट पर केजी डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि समझो इसी कंपनी ने, एक कोई कंपनी है या बिजनेस एक्टिविटी है, एक प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ एक प्रोडक्ट, अब रेंट तो मुझे 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई फिक्स एक्सपेंसेस 1 लाख इनकर्ड फॉर वन प्रोडक्ट, बराबर है, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये बोला यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एक्सपेंस डिपेंड अपॉन वेरिएबल एक्सपेंस। अभी ये मान लेते हैं कि अपन ने यहाँ पे 1 लाख प्रोडक्ट बनाए, 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है ना। आप 1 लाख से इसको डिवाइड करवा दो तो पर फिक्स कॉस्ट पर क्वांटिटी आ गया 1 रुपए, आई बात समझे, 1 रुपए यानी कम हो गया। अगर ये 2 लाख प्रोडक्शन लिया तो 50 पैसा हो जाएगा, आई बात समझे। इसका मतलब ऐसा हुआ कि application of fixed cost or suppose utilization of fixed cost, how you can minimize the fixed cost per unit, that all are depend upon variable expenses, and variable expenses is very important and fixed expense also very important. In a break even point means I made explanation, break even point means no profit no loss, मतलब ये आप आपके दिमाग में प्रिंट कर लो, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस, ना प्रॉफिट नहीं
ना लॉस नहीं, ठीक है। ऐसा ये पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, यह ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम उतना अच्छा, जितना कम उतना अच्छा, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब बोलने का तात्पर्य मेरा कैसा है, देखिए अपन समझने के लिए एक प्रॉब्लम तैयार करता हूं, यहाँ पे एग्जांपल तैयार करता हूं। दिस इज ए कंपनी एंड दिस इज बी कंपनी, ठीक है। अब एक ए कंपनी का बीपी, ये समझो मैंने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाद में बताऊंगा। बीपी यह है 2000, ये रुपीस में बोल रहा हूं मैं, रुपीस 2000, ठीक। और बी कंपनी का यह बीपी समझ लेना कि ये और बी बोथ द कंपनीज आर सेम प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका बीपी है 1000, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसके पहले ही बोल दिया वैल्यू मेक कंपैरिजन, ठीक है ना। लो बीपी इज गुड फॉर दैट बिजनेस, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, बीपी यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब यहां पे क्या हुआ, मैंने जैसे 2000 बताया, मतलब यहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट बोथ आर सेम, ठीक है। और इसका प्रॉफिट कंपनी का 2000 से शुरू हो जाएगा, 2000 के आगे। अब बी में क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट 1000 से शुरुआत हो जाएगा। आई बात समझे, ठीक है। इसका मतलब साफ हो गया अभी कि बी कंपनी is more profitable than A company because the profit of B company started from 1000 and profit of A company started from 2000. For taking decision with the help of BP, so kept in your mind and stored in your mind, low BP is better, would be better. यह बिल्कुल सत्य है कि कम से कम बीपी रहेगा कंपैरिजन के वक्त। इस वजह से पहले मैंने ये बोल दिया था आपको शुरुआत करने से पहले कि भाई हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट तो मिलता ही है और मिलेगा, लॉस भी मिलेगा, वो होना ही है उस बिजनेस में, प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन मैंने प्रेस किया था कौन से पॉइंट से प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम व्हाट पॉइंट वी गेट अ प्रॉफिट। तो इस एग्जांपल से क्लियर हुआ आपको, वह बीएपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। और लो बीपी इज गुड फॉर अ बिजनेस और सपोज कंपनी। अब सवाल होता है कि भाई बीपी हम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो एक फार्मूला बताता हूं मैं यहां पे। बीपी इज इक्वल्स टू F upon 1 minus V upon S, यह एक फॉर्मूला है। वैसे तो you can calculate BP, two more formulas are available throughout the world. One of them is BP is equal to F upon 1 minus V upon S, ठीक है। तो question raise in your mind, what is the meaning of fixed cost? Fixed cost means remain constant, that is not depend upon the production, that is fixed. So better understanding, you can take a daily routine example, that is rent. Rent, it is fixed. It can't be, I am not saying just that it can't be increased, that is a different matter, but remain constant. V means variable cost. V means variable cost tends to vary with production. इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ साथ वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ेगा। और एक थर्ड ऑफ एब्रिविएशन मैंने इस्तेमाल किया एस यानी सेल, ठीक है। और उसको एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेल सबको समझता है कि बिजनेस में क्या, ठीक है। इसमें आपने फिक्स कॉस्ट रख देना है, वेरिएबल कॉस्ट पुट करो और सेल। इसको सॉल्व किया तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मींस बीपी यू कैन कैलकुलेट इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 माइनस बी अपॉन एस, दैट इज योर बीपी। Low BP is good, means I explain and I prove that with the help of by taking problem. Another formula also available to find out the BP. BP is equals to
F upon PVR, PVR, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन से आपको F का तो मीनिंग पता चल गया है, F यानी फिक्स्ड कॉस्ट। फिर यहाँ पे एक और आ गया PVR। PVR मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। So we have to find out PVR. How we can find out the PVR? It is also easy task to find out because all are information given in examples, and as per the problem or question means calculate the PVR. So how you can calculate the PVR? PVR is equals to contribution upon S and multiplied by 100. Contribution upon S. So question raised in your mind, what is the meaning of contribution? Say you are known person about that. C means here S minus V. Contribution is equals to sales minus variable cost. Both are known to you because I made explanation. So put the information in this PVR and find out that PVR. So you will get the PVR just like 40%, 30%, 80%, whatsoever. Higher PVR, it is better. Means on the basis of PVR, you can check the profitability of a company, of a business with the help of PVR. And it is very easy. C upon S means contribution upon sales multiplied by 100. After calculating the PVR, if you put that value in this formula, you will get the answer that is BEP in rupees. यह रुपीस में मिलेगा आपको, ये दोनों, ये रुपीस में, ठीक है। अब उसके आगे BEP कैन बी कैलकुलेट, या आप कैलकुलेट कर सकते हो BEP in units, ठीक है। How? F upon S minus V, S minus V per unit, that is very important, per unit. There is a need of information per unit. BEP is equals to, means BEP in units, F upon S minus V per unit. Means put the value of fixed cost S per unit चाहिए. For understanding, we can take a suppose some amount, fixed expense, that is suppose 10,000. As selling price per unit, that is suppose 80 rupees per unit. Variable cost, that is suppose 60, ठीक है, and multiplied by 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी परसेंटेज आएगा, ठीक है, वो एक्सप्रेस करो, सॉरी परसेंटेज नहीं, यूनिट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान हो गया, 10,000, ठीक, अपॉन 20, ठीक है। मतलब you will get answer that is 500 units, ठीक है। So you can find out BEP units also just like, ठीक। तो आपको समझ में आया ही होगा कि PVR कैसे कैलकुलेट करना है और वह क्या रोल अदा करता है, और BEP units you can find out। अभी अपन थोड़ा और इसके बारे में सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, तो मैं आपको एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बताऊंगा। वह मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपके समझ में आया कि बहुत आसान तरीका हो जाएगा आपको यह बीईपी समझने के लिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट बताता हूं, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल
एक स्टेटमेंट बताता हूं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट करके। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेल्स, 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 ठीक है, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक। Subtract it, you will get contribution, contribution, ठीक है। And next fixed cost, fixed cost, ठीक है। You will get is equals to profit, profit, that is profit। तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा, सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, contribution, and if you subtract the fixed cost you will get a profit, ठीक है। So by that marginal cost statement you can easily find out the other suppose requirement or this break even analysis, means I explained before this a formula for BEP. Again I want to repeat this, BEP is equals to F upon 1 minus V upon S, ठीक है। Another formula means BP is equals to F upon PVR, PVR, ठीक है। Another formula, third, that is in units, BP in units, ठीक है, is equals to F upon S minus V per unit, per unit, ठीक है, per unit। And PVR means PVR is equals to S minus V upon S into 100, ठीक है, S minus V upon S into 100। Another formula, C is equals to, this is your contribution, contribution is equals to S minus V, ठीक है, S minus V। Contribution can be calculated just like C is equals to S into PVR also, PVR also, ठीक है ना। C is equals to S into PVR। C can be find out just like C is equals to F plus P also, ठीक। Means with the help of three formula you can easily find out the contribution, ठीक है ना। Contribution is equals to S minus V, C is equals to S into PVR and C is equals to F plus P also। And suppose if when you want to solve the problem, ठीक है ना, तो उसमें S चाहिए, V चाहिए, ठीक है ना, F चाहिए, तो यह स्टेटमेंट अगर आपने इस्तेमाल किया तो 2-3 हेड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एक्सेट्रा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब देखिए मैंने आपको ऐसे बोला था लो बीपी, जितना बीपी कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, ऐसा नहीं बोलना है मेरा, यह नहीं बोलना था। मैंने ये समझाया था आपको प्रॉब्लम लेके ए और बी का कि स्टार्टिंग जो है वह आपको देता है, मतलब प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि जैसे मैंने प्रॉब्लम लिया था, तो अभी जैसे मैंने बोला भाई ये कंपनी है और बी कंपनी है, इसका बीपी 2000 है, ठीक है, और इसका बीपी समझो 800 है, 800। क्या हुआ, बीपी इंडिकेट हियर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। The profit of A company started from 2000 and profit of B company started from 800। तो जाहिर सी बात है B को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। पहले तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू इक्वल करने के लिए देखो कितनी मशक्कत करना पड़ेगा, और इसकी मशक्कत 800 पे ही खत्म हो गए। इसका मतलब ऐसा हुआ 800 से प्रॉफिट शुरू हुआ और A का 2000 से प्रॉफिट शुरू हुआ। तो आप सोचो ये 800 से 2000 तक जाने तक तो कितना सारा प्रॉफिट अर्न कर लेगा।
और यह देखती रहेगा। आई बात समझे? इसीलिए मैंने ये बोला था लो बीपी इट वुड बी बेटर, ठीक है। और दूसरा पीवीआर बोला था एस माइनस वी अपॉन एस, हाइयर इट इज बेटर, मींस व्हेन यू कंपेयर A and B, suppose the PVR of A company that is suppose 60%, ठीक है, और PVR of B company suppose 80%, तो क्या होगा यहाँ पे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है ना। दूसरी बात ऐसा है, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया मैंने कंट्रीब्यूशन, तो मैंने आपको लिख के दिया था यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी, एस माइनस वी, और एक स्टेटमेंट बनाया था अभी इसके पहले, कैसे एस माइनस वी इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना उसमें एक पावर होता है, वह फिक्स कॉस्ट को डाइजेस्ट कर सकता है। नहीं तो आप यहां से थिंक करो, आपने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, समझो कंट्रीब्यूशन है 10,000, ठीक है, और उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो भी समझो 10,000 ही है, तो उसको प्रॉफिट हो गया, जीरो हो गया। आई बात समझे? इसीलिए मैंने बोला इसका यूटिलाइजेशन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यह जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हेल्दी, मान लेते हैं कि यहाँ 40,000 आएगा समझो कंट्रीब्यूशन, तो 10,000 रुपए डिडक्ट कर दो, तो आपका प्रॉफिट हुआ 30,000। आई बात समझे? ठीक है। इसी वजह से पीवीआर इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक। इसके बाद इसमें एक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू कैन टेक अ डिसीजन whether your business is in a position to make competition. Can your business stay in this market? So there is a need to calculate the margin of safety, that is denoted by MS. Margin of safety is equals to sales minus BP. ये ख्याल में रखना, सेल माइनस बीपी। मतलब ऐसा हुआ, अगर आपको एमएस फाइंड आउट करना है तो एस होना, एस तो दिया रहेगा प्रॉब्लम में, और बीपी नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, f अपॉन 1 माइनस v अपॉन s, इसका इस्तेमाल करो और आपको वह ms मिल जाएगा। ms कैन बी फाइंड आउट जस्ट लाइक, ठीक है ना। अब दूसरा ऐसा है कि इसको परसेंटेज में भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक दूसरा फॉर्मूला बताता है आपको p अपॉन पीवीआर, p अपॉन पीवीआर, ठीक है ना। मतलब ऐसा हुआ बीपी की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि एक आधे प्रॉब्लम हो सकता है P दिया जाए और PVR आप फाइंड आउट कर सकते हो। PVR के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने, S माइनस V अपॉन S इंटू 100, इसको इस्तेमाल करो, इसमें पुट करो तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आल्सो, वेरी इजी, MS अपॉन सेल्स, ठीक है, इंटू 100, MS अपॉन सेल इंटू 100। अब यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए मतलब कैसा फ्रूटफुल है या तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया मैंने, देखिए सेल में से बीपी निकाल, बरोबर है, ठीक है। अब यह मैं समझा देता, जरा अलग एंगल से समझाता, ठीक है। ये कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी का बीपी है यहाँ पे, ठीक है। बीपी कितना है ऐसा समझ लीजिए 50,000, बीपी है 50,000। बहुत ध्यान से देखो जरा इधर, हाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपी यह है 50,000, ठीक है। और इसका टोटल सेल, ठीक है ना, समझो 1 लाख है, 1 लाख। आई बात समझे, 1 लाख। बीपी में क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर टोटल सेल, दिस पॉइंट मींस फ्रॉम दैट एंड दिस पॉइंट मींस योर एस। आई बात समझे। और यह तुम्हारा क्या हुआ, एमएस,
ख्याल में रखो, देखो मैंने क्या बोला, यह बीपी है 50,000, यहाँ टोटल सेल है 1 लाख। यह पोर्शन जो है वो इंडिकेट कर रहा है एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसलिए मैंने यह बोला जितना कम उतना सेफ्टी ज्यादा मिलेगा। अब कैसे, देखो अब इसको मैं और बढ़ाता हूं, ऐसा समझ लो, ले लो आप लोग, क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस में कोरोना से 2 हाथ कर रहा है पूरा दुनिया और विशेष कर आप अपना इंडिया, ठीक है ना। तो कोरोना के पहले की बात बोल रहा हूं, 5 महीने पहले या 6 महीने पहले की बात, ठीक है। और इकोनॉमी भी, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, सवाल ही नहीं आ रहा, ऐसा समझ लो। ये जो घराना कंपनी, मेरे कंपनी का नाम है घराना कंपनी, ठीक है, उसका बीपी था 50,000 और कोरोना के पहले उसका जो सेल था वह था समझो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, यह था सेल। कोरोना के पहले की बात बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सेल था मेरा 10 लाख टोटल से और मेरा बीपी था 50,000, बरोबर है। यानी मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिफोर कोरोना, समझ में आई होंगी बात, इतना था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इतना, ठीक है। इतना यानी कितना, तो 9,50,000, 9,50,000। आई बस, ये कोई बातें नहीं, बतंगड़ बातें नहीं है कि कोई भी टीवी चैनल पे कोई तो भी क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशन चालू है और कुछ भी बकबक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक टेक्निकल एनालिसिस है और ये प्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है, टेक्निक से और लाइव एग्जांपल लेके। देखो कोरोना के पहले, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोरोना के पहले मेरा सेल था घराना कंपनी का 10 लाख। आई बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यह है 9,50,000, 9,50,000। अब कोरोना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ही शुरू हुआ तो सारा तो लॉकडाउन नहीं हुआ था, थोड़ा लॉकडाउन हुआ था, थोड़ा लॉकडाउन हुआ था, ऐसे कर करके 1 महीना गुजर गया, मार्च महीना, तो पूरा लॉकडाउन हो गया, ठीक है। लॉकडाउन होने से निश्चित बात है कि क्या हुआ, सेल जो है वो कम हो गया, लोगों का इनकम कम हो गया, सब हो गया, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया, इंडिया का ही नहीं है पूरे दुनिया का है, कम हो गया। अब देखो क्या हुआ, माय सेल कम डाउन, मीन्स माय कंपनी सेल कम डाउन, एकदम से नहीं हुआ वो सेल कम। हाँ, ये भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही सेल कम होता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो गया, कम हो गया, चालू है कम होना, कम। तो ये समझो सेंटर तक आ गए, इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहां तक 5 लाख रुपए हो गए मेरा सेल। आई बात समझे, 5 लाख, तो ये काफी समय है ना, लंबा वक्त है, ठीक है, ये यहां तक आए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से, क्योंकि कोरोना से फेसिंग चालू है ना अपना, अभी भी वही काम चालू है, ठीक है ना। तो ऐसा कर करके, क्योंकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तब तक तो मैं इसको कैसे भी डाइजेस्ट कर सकता हूं और करूंगा, ठीक है। हो सकता है मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, देखो कि मैं दिवाली को भी पार कर लूं और यह जो ग्रेजुअल मतलब जो डिटोरेशन शब्द अच्छा नहीं है, यानी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मेरा सेल, आई बस समझे यहां तक, इतना मेरे पास टाइम है सोचने के लिए। मतलब ऐसा कि मेरा सेल अगर यहां तक भी आ गया 50,000 तक, इतना लंबा वक्त मिल रहा है मुझे, कैसे, काहे के बारे में लंबा वक्त मिल रहा है कि मैं फिर से सेल कैसे बढ़ाऊंगा। अगर ये कोरोना की सिचुएशन देखते हुए मैं डाइवर्ट भी करना चाहता हूं मेरे प्रोडक्ट को, मेरे एक्टिविटी को, तो काफी समय है। इसी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्ले अ वाइटल रोल, बहुत बड़ा मतलब सजेशन मिलता है अपन लोगों को। और दूसरा बात, जैसे मैंने दूसरी कंपनी लिया है, या तो इसी में देता हूं उदाहरण है कि जैसे 50,000 है और सिर्फ मेरा सेल 1 लाख रुपए था, तो मुझे इतना ही समय मिला था, इतना ही समय मिला। इस समय में मैं शायद कोरोना से झगड़ नहीं सकता, और इतना सेल है मेरा, इस वजह से मुझे देखो कितना टाइम मिला, बहुत टाइम, 5-6 महीने तो आसान किस्तों में निकल जाएंगे। लेकिन अब इसके अपोजिट थिंक करो तुम लोग, कोरोना के पहले अगर मेरा सेल समझो 60,000 था, ऐसा समझ लीजिए 60,000, ठीक है, मेरे पास सोचने के लिए इतना ही वक्त है,
क्या कर सकता हूं, वक्त ही नहीं मेरे पास इस वजह से, ठीक है। और कोरोना शुरू हो गया तो मेरा तो कंपनी को लॉस ही हो जाएगा उसी वक्त। फरवरी में शुरू हो गया था और मार्च में ही मुझे लॉस हो जाएगा और आई वांट टू शट डाउन माय बिजनेस, बराबर है। लेकिन मेरा सेल कोरोना के पहले 10 लाख था, बार बार रिपीट करो 10 लाख था, इसी वजह से मुझे देखो कितना टाइम, मतलब ऐसा हुआ कि मैं 7-8 महीने कैसे भी इसको डाइजेस्ट कर लूं और उसके बाद शायद मैं मेरे पॉइंट तक पहुंचूं। लेकिन सोचने के लिए बहुत वक्त है, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ख्याल में रखना। जितना ज्यादा देखो मैंने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया, जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसी वजह से जितना बीईपी कम उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगा, ये भी साबित हो गया। देखो कैसा मजा है इसमें, मतलब जितना बीईपी कम उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा। आई बात समझे। और बीईपी कम रखने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, डीप नॉलेज भी होना चाहिए। मींस हाउ मींस द वी कैन और सपोज आई कैन मिनिमाइज द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। नो वन कैन मिनिमाइज द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो मैं बता देता हूं आपको। कैसा तरीका है, फिक्स कॉस्ट है, रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा ना मुझे, 10,000 है तो 10,000, लेकिन वो 10,000 को मैं मिनिमाइज करके बताऊंगा, ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। यानी कैसे करूंगा, देखो मैंने इसके पहले बोला था यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट डिपेंड अपॉन वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये बात ध्यान में रखना। और इसमें दो बातों है, कैसी बात है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। ये ख्याल देखो मैंने क्या बताया आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझे, ख्याल में रखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। उदाहरण के तौर पे समझो मेरे कंपनी को मटेरियल खरीदना है, मटेरियल का रेट है, क्या रेट है, ₹50 पर केजी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 50 रुपए, ताकि मैं प्रोडक्शन 10 किलो का लूं, 50 किलो का लूं, कितना भी लेना है तो मुझे आप रेट तो उतना ही देना पड़ेगा, 50 रुपए। इस वजह से मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, total cost of fixed expense remain constant and fixed cost per unit it is variable। ख्याल में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेबल, वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। देखो प्रूव कर लेते हैं अपन, समझो फिक्स कॉस्ट है 10,000, ठीक है, और मैंने भी, मेरे कंपनी ने प्रोडक्शन दिया है 10,000 यूनिट का, ठीक है, 10,000 यूनिट का, ये यूनिट्स है, ठीक है, और ये रुपीस है। आई बात समझे, ये रुपीस है, ये इसको इससे डिवाइड किया तो पर यूनिट 1 रुपया आएगा, ठीक है। और यही प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, इसको बढ़ा देंगे अपन, बढ़ा दिए कितना, 20,000 कर दिया। अब ये पर यूनिट 1 रुपए के जगह 50 पैसे हो जाएगा। आई बात समझे, देखो ऐसा इसको कम करना है मुझे फिक्स कॉस्ट को, वैसे नहीं कम कर सकते अपन, कोई भी फिक्स कॉस्ट रहे वो तो रिमेन कॉस्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे कम करना बाय टेकिंग मोर एंड मोर प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई मेड एक्सप्लेनेशन द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट डिपेंड अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात ख्याल में रखना आपने, कौन सी, देखो आप खुद सेल बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये भी सही, मार्केटिंग करके कोई भी करेगा मार्केटिंग कर, ठीक है, सेल्स बढ़ाया और आपको प्रॉफिट हुआ, वो भी सकता है, सेल बढ़ाया क्वांटिटी और प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन मुझे जो प्रॉफिट चाहिए ना, मुझे स्किल प्रॉफिट चाहिए, ये मैं नया आपको बताता।
मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो स्किल प्रॉफिट चाहिए। मतलब ऐसा कैसे मिल सकता है मुझे स्किल प्रॉफिट? वो देखो क्या है कि मेरा समझो कॉम्पिटिटर है, मेरे कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है, ऐसे एक ही नहीं रहेंगे बाजार में, तो 10-12 हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि मैं फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस ही नहीं कर सकता, कम ही नहीं कर सकता, मुझे जो मतलब एग्रीमेंट के तहत मुझे पेड करना है। जैसे भाई सैलरी है तो उतना देना ही पड़ेगा, रेंट है, सुपरवाइजर की सैलरी है, इसकी है, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है गोडाउन है, गोडाउन में माल नहीं है, वॉचमैन बाहर है, देखो क्या गेट का वो संरक्षण करेगा, प्रोटेक्शन देगा? माल है घर मतलब उसके गोडाउन में क्वांटिटी है तो सैलरी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, देखो अपन ने क्या किया यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे कम करना है ना वेरिएबल कॉस्ट, मैं एकदम से नहीं बोलूंगा भी कम ही करूंगा। मैंने जैसे बोला ₹50 पर केजी, ठीक है, पर केजी, यह मैंने रेट बताया रॉ मटेरियल का। Can it be possible to purchase the quantity of raw material? If it is yes, so automatically my company can enjoy some discount, cash discount, ठीक है। बल्क परचेज किया तो हो सकता है वो 50 के जगह हो सकता है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 50 पैसे उसने कम करवा दिया, इसका मतलब मुझे यही रॉ मटेरियल 49.50 से मिल सकता है, बस इतना ही, ज्यादा बोल ही नहीं रहा मैं, सिर्फ 50 पैसे कम, ये तो हो सकता है, ठीक है। और एक ही वेरिएबल एक्सपेंस नहीं आता है, लेबर है, आई क्या बस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोटिव पावर है, फ्यूल है, वाटर है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है जितने मतलब वो दैट डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब आप बोलोगे भाई वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूं, हर एक के घर में ये तमाशा है। कौन सा तमाशा है कि रूम में जाओ, लाइट शुरू करो, रूम के बाहर आने के बाद बस ही चले आओ, लाइट बंद, क्योंकि मुझे वापस और जाना है रूम में, इस वजह से मैंने शुरू ही रखा। अब आप सोचो, बहुत गहराई से सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी सेविंग मींस इट इज अ इनकम, सेविंग मींस इनकम। देखो 365 दिन है, अब यह तो आप कम भी नहीं कर सकते और ज्यादा ही नहीं कर सकते, फिक्स है कई सालों से, ठीक है। अब एक घर है, उसमें 4 रूम है, 4 सदस्यों के लिए अलग अलग है, किचन है, बेडरूम्स है, एक्सेट्रा। आप देखो तुम्हारे घर में भी ऐसे हो गए, माता पिता ने बोल दिया बेटा वो लाइट चालू है ना, नहीं अभी जाना ही है, 1 मिनट के बाद जाना ही है, इसलिए मैंने शुरू रखा। बेटा पंखा शुरू है ना, बस जाना ही है ना पिताजी, बस 2 मिनट में जाना ही है मुझे, इस वजह से मैंने शुरू रखा। आई बात समझे? अब वो पिताजी तो ये, पिताजी को भी नहीं समझता है वो क्या बात है, पिताजी तो ये बोल रहे हैं कि भाई वहां पे कोई नहीं इसलिए बंद करो, बरोबर है। और आप तुम सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, कोई डिग्री चाहता है, कोई बीकॉम को होगा, कोई सीएस कर रहा होगा, ठीक है, कोई एमबीए कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, बड़े बड़े किताबें पढ़ रहा होगा, लेकिन बात मजे की कैसा है, लाइट बंद नहीं करता, पंखा बंद नहीं करता बेचारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब कैसा, 1 मिनट आपने आंसर दिया था, 1 मिनट में फिर से जाना है, ठीक है। अब अपन 1 मिनट लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट ध्यान में रखना, 1 मिनट, एक व्यक्ति का 1 मिनट, उसने क्या किया, वो लाइट बंद नहीं किया, बाहर आ गया, 1 मिनट के बाद फिर से गया, अगर बंद कर लेता था तो 1 मिनट सेव हो गया। तो ऐसे एक ही बार नहीं होता है, मतलब बार बार होता है, लेकिन मैं एक ही बार की बात बोल रहा हूं, तो 365 मिनट्स हो गए, बरोबर, ये 300 मिनट्स हो, 365 मिनट, सोचो 365 मिनट, ठीक है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए 360 कर लेते हैं, आई बात समझे? अब क्या हुआ, आप सभी लोग होशियार हो, ठीक है ना, यह 360 मिनट हो गए, इसको अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर, कितने हुए रे भाई, 6 आवर्स, 6 आवर्स, ये तो 1 टाइम का बात कर रहा हूं, ऐसे तो आप कितने बार, मतलब ऐसी मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ताने मारते तुम अपने अपने घर में, कैसे
कि भाई अरे 1 मिनट ही है ना, 1 मिनट ही है ना, सारे सदस्य ऐसे ही बोलेंगे। आप पिताजी को भी बोलेंगे, क्यों पिताजी आपने तो रखा, अरे भाई मैं 1 मिनट में आ ही रहा हूं ना, इस वजह से। तो सभी वैसे ही रहेंगे, सब एक दूसरे को बोलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का कर्टन रिमूव करवा देता हूं। शिक्षा, अभी मान लेते हैं कि 5 मेंबर हैं, ठीक है, एंड 30 आवर्स हो गए, देखो 30 आवर्स हो गए, ये एक बार का। ऐसा समझो, ऐसा समझ लीजिए कि रात के शाम से 7 बजे तक 11 बजे तक कितने बार हो सकता है, 5 बार तो होना ही है। इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 आवर्स। सोचा, मतलब एक फैमिली 150 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी का बचत कर सकते हैं, यानी 150 आवर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होता है। हो गई। ऐसा ही मुझे मेरे फैक्ट्री के बारे में सोचा है। मींस आई एम नॉट अ स्टिंजी, मींस माइजर नहीं हूं मैं। लोग तुम क्या बोलोगे कि माइजर है, नहीं नहीं, ये एक क्रिएटिविटी है, ये थिंकिंग है। कैसा थिंक करेंगे आप लोग, ये थिंकिंग है। इसको माइजर वगैरह कंजूस है ऐसा मत बोलना। यह मतलब बोलने का तात्पर्य, मुझे तो ये बिजनेस है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि भाई क्वांटिटी ऑफ सेल दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो मार्केटिंग का जॉब हुआ, ठीक है ना। हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बेचा और क्वांटिटी बढ़ भी जाएंगे, लेकिन मुझे ये स्किल प्रॉफिट होना। ऐसे करके आप लोग यह वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। आई बात समझे, मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करते करते ऐसे 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे सक्सेस आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि इसमें समझो 3 रुपए की बचत हो गई, यानी इसको सेविंग बोलता हूं मैं, सेविंग्स, ठीक है। ये सेविंग हुआ 3 रुपए पर प्रोडक्ट, 3 रुपए तुमने बचा लिया स्किल इस्तेमाल करके। अब क्या हुआ, अगर आप 1 लाख क्वांटिटी देखो, 1 लाख क्वांटिटी समझो आप बेचते हो, ठीक है, पर मंथ, तो 3 रुपए से 3 लाख जगहों पे ही आपका फंड रेज हुआ। आई कि नहीं बात समझे। चल, हो सकता है आप बोलेंगे 3 रुपए बहुत हो गए, तो वो तो आपके क्रिएटिविटी और थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने 3 रुपए बचाए, तो 3 लाख रुपए नहीं बचे, फिर 3 लाख रुपए से प्रॉफिट नहीं बढ़ा क्या। अब वो अलग बात है, मार्केटर मींस आपने सेल्समैन अपॉइंट किए वगैरह, ऐड दिया, वो प्रॉफिट बढ़ाना, वो एक अलग स्किल हुआ। ये एक मतलब अलग बात हो गई। मैं तो सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी टर्न एज रेजिंग ऑफ फंड, यह मैंने बताया। और आप देखते हैं बैंक में जाते हो, बड़े बड़े मतलब सरकारी ऑफिसेस में जाते हो, बहुत बार देखते हैं उसके नीचे कोई नहीं रहता है, लेकिन ट्यूबलाइट्स और फैन शुरू होते हैं पूरे इसमें देखो। तो ऐसा अगर आपने थिंकिंग किया, जैसे मैंने 150 आवर्स का सेविंग बताया, 140 करोड़ लोग हैं अपन, और फैमिली करके ऐसा अगर आपने सोचा और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना करोड़ हो जाएगा, बरोबर है। एक राफेल अपन एक परचेस कर सकते हैं उसके, और चीन के छाती पे मूंग भी दल सकते हैं, एक राफेल। इसी वजह से अपने सबका सेविंग देखो कहां से कहां लेके जा सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि आपके समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी सेविंग इन बिजनेस कैन बी टर्म एज अ रेजिंग ऑफ फंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको और मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बिजनेस में, यानी प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से, यह मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और आप जरूर देखिए इसको, और देखने के बाद उसको यूज करो। एप्लीकेशन होता है, अपने देश में कैसे एडवाइस दिया जाता है, लेकिन एडवाइस दे के क्या फायदा, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ा है, और आप क्या करो, अभी दूसरा मतलब इसके बाद जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, तो आप इसको पहले देख लीजिए, और फिर दूसरा भी मतलब मैं अपलोड कर दूंगा इसके आगे का, कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ सच एंड टाइप ऑफ means formulas, ठीक है। Okay, if you have any difficulties about this, means suppose some doubts created in your mind, what is the meaning of BEP, or suppose variable expenses, fixed expenses, and suppose PVR, contribution, margin of safety, which I made explanation with the help of by taking means
examples. So you can pass your question through your comment box, and I will give answer for that. But think thoroughly about this break-even analysis, and this chapter academically important, but it is also useful practical base also. Means each and every businessman. कैसा होता है, एक किराना दुकानदार है, वो थोड़ी इस्तेमाल करता है, उसको भी समझता ही नहीं है, लेकिन उसके ही बच्चे भी मतलब बीकॉम पास है, सवाल ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो उन्होंने तो सलाह देना चाहिए ना, वो भी नहीं देते। क्यों नहीं देते ये मुझे नहीं पता है, क्यों नहीं देते, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट क्या समझता है एकेडमिक है, ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है। अरे तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम इस्तेमाल तो करो तो ही होगा ना। अब कम से कम आपके माता पिता की जो भी व्यवसाय होगा, कुछ भी व्यवसाय होता है, सारे व्यवसाय के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए लोन देना किसी को ये अलग बात हुआ, लोन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट करना, इसके लिए स्किल लगता है। जैसे अपने इंडिया में मुद्रा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया है, जिसको चाहिए वो मुद्रा लोन ले रहा है, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी ले रहा है। बहुत सारी स्कीम है, स्टार्टअप वगैरह, ये तो स्किल इंडिया एक्सेट्रा सभी तरह से। लेकिन बात क्या हुआ वहां पे कि उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे अच्छे ढंग से। एप्लीकेशन करने के लिए जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने के लिए क्रिएशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन चाहिए। और एक क्रिएशन आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, आपका थिंकिंग बोलेगा, आपका डीप नॉलेज बोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बात करने से नहीं बनता है। इसी वजह से इसको इस्तेमाल करो। और देश के लिए जो पिलर चाहिए, मतलब अभी के जो प्रेजेंट टेंस के जो स्टूडेंट्स है, दे ऑल आर द पिलर्स फॉर इट। वी हैव टू मेक कंक्रीट पिलर, कंक्रीट पिलर बनाना है अपने को। तो पिलर कैसे बनाना, तो कुछ तो पिलर बना रहा है, कंक्रीट पिलर बना रहा है। कैसे बनाएंगे, कोई तो होना बोलने की नहीं कि कैसे बन सकते हैं। तो इसी वजह से इसको इस्तेमाल करो और कोरोना से फाइट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तहत। आई पास है, जब आप भी स्टूडेंट हो तो स्टडी जरा कॉम्प्रिहेंसिव करो, बहुत करो। थिंकिंग कैसा है, स्टूडेंट का 4 ही चैप्टर करेंगे, जो और में वो छोड़ दो। देखो अपने यहाँ थिंकिंग है, समझो 10 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर और में है, तो 3 चैप्टर मास्टर भी नहीं पढ़ाता और लड़के भी पढ़ना नहीं चाहते। अक्सर होता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सभी तरह होता है, लेकिन होता है। और जब भी तुम स्टडी करते हो तो 3 तो छोड़ ही देते हो, सवाल ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ना करो। स्टडी करते समय तुमको परफेक्ट करना ही पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आगे का हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे मैंने रिपीट किया है उसको, तो अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है।